Hello, Namaste. Welcome to another episode of the DLife.in Sunday podcast series that's soaked in inspiration, grit, and the story of a woman's dream come true. I'm your host, Ira Sahai, a certified practicing metabolic health coach, member of DLife, and also its media head. DLife.in is India's biggest, oldest, and the only award winning low carb platform. Founded in 2014 by Anup Singh, an engineer, a silver medalist from India's Ivy League institution, IIT Roorkee. And he's a 14th year pill-free diabetic. In 2011, it was Anup who pioneered the path-breaking template of 100-gram carbs per day for Indians on a vegetarian diet that subsequently helped thousands of Indian diabetics find remission. DLife is the single biggest Indian low-carb platform in the world with 3,000 plus combined success stories, 2,000 plus original low-carb keto recipes, 200 podcasts, and more. The DLife Diploma course in Low Carb Nutrition and Metabolic Health is India's legally attainable course, which is also the only one from India to be CPD SO UK accredited with 60 hours credit to a diploma course. The DLife Diploma course is also the only one from India to again be the SMHP approved CMHE provider. Anup Singh, along with Shashikant Iyengar, was also the co-organizer of the two global metabolic health conferences held from India in 2023 and 24, which were historic events in the global low carb space. In today's podcast, I welcome my guest, Amrita Somi. Amrita is a member of DLife and is now also a certified practicing metabolic health coach from DLife. She's from Ludhiana, Punjab. She was a software engineer and a software developer and has worked in the corporate sector. Now she runs her own enterprise while also being a practicing metabolic health coach. This is besides being a new mother to a sweet little baby girl called Adrita. Amrita, welcome and many congratulations on the absolutely inspirational feat that you've achieved at DLife. So proud to have you on the team, and you've done very well for yourself as well. Welcome. Thank you. Thank you so much. Okay, Amrita, let's begin by asking before we come to the point from where your journey starts, really. Tell me, was there a background of any health issues while you were growing up or any medical conditions while you were growing up? Yeah, basically, जब मेरे like childhood से ही मेरा थोड़ी obesity like obese थी मैं, तो eating all the junks and all the time and being a hostler like जब मैं hostel में गई हूँ और तब मेरा खाना पीना जो है वो सब like ऐसे disaster हुआ, mess life and all that stuff. और उसके साथ मेरा वेट इतना गेन हो चुका था कि लाइक ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं 60 से 70 70 टू लाइक 80s में कब आई मुझे नहीं पता लगा। और साथ के साथ मुझे हेल्थ इश्यूज हुए जो थे कि पीसीओडी, थायराइड, लाइक गट हेल्थ इश्यूज एंड कॉन्स्टिपेशन। ये चीजें मेरे साथ चलती रही और मुझे न्यूट्रिशन का इतना पता नहीं था तब। और ये चीजें ऐसी डिजास्टर हुई कि लाइक मेरी हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं। और बेसिकली जब मैं लाइक स्कूलिंग डेज में थी तब भी लाइक मेरा ये था कि बहुत ज्यादा वेट बढ़ने के कारण मेरी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी। और जब मैं लाइक कॉलेज में शिफ्ट हुई हूँ, जैसे कॉलेज मैंने ज्वाइन किया है उसके बाद मेरे पीरियड्स की जो प्रॉब्लम मेन थी वो चीजें बहुत ज्यादा लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई हैं मेरी। ओके अमृता, आप ये बताइए कि अभी आपने एक बैकग्राउंड दिया कि बचपन से हेल्दी ईटिंग की आदत नहीं थी और काफी जंक खाया जो कि बढ़ गया कॉलेज में जाने के बाद। आपको पीसीओडी कब डायग्नोज हुआ? मुझे पीसीओडी इन माय बीटेक डायग्नोज हुआ था। और पीसीओडी जो सिम्टम्स मुझे दिखने शुरू हुए थे वो था टमी एरिया फैट एंड ओबेसिटी, लेथार्जिक, लिटिल बिट फेशियल हेयर एंड जो डिलेड इन माय पीरियड्स, जो मेजर प्रॉब्लम थी मुझे। तो उस वक्त आप व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? इट वाज 18 17 और 18 अराउंड। Okay. And did you know about PCOD? Did anybody around you talk about it? कैसे आपको पता चला, कैसे डायग्नोज हुआ कि वो पीसीओडी है? वो थोड़ा जर्नी बताइए हमें। या बेसिकली जब मुझे ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तो माय मदर लाइक टेकिंग टू मी डिफरेंट डॉक्टर्स एंड विजिटिंग डिफरेंट डॉक्टर्स क्लिनिक्स
सो मैंने होम्योपैथिक ट्राई किया, मैंने एलोपैथिक ट्राई किया, इवन आयुर्वेदिक ट्राई किया, सिरप्स पिए हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जिससे लाइक ना तो वेट रिड्यूस हो रहा था, ना पीसीओडी रिकवर हो रहा था मेरा। और पीसीओडी इट वाज लाइक पेनफुल फॉर मी, क्योंकि मल्टीपल सिस्ट बन चुके थे मेरी ओवरीज में, और ऐसा था कि ये चीजें बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं मुझे। और मम्मा को ये था, लाइक माय मदर इज लाइक like you should visit doctor, a best doctor, a gynecologist, so that you can handle this all. So PCOD, like as such आजकल सब young girls में it is like one other girl में है, and it is due to our lifestyle only. और हमें इस चीज का रूट कॉज कभी नहीं पता लगता है कि ये क्यों है और कैसे है। हम जस्ट विजिट करते हैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डॉक्टर्स के पास, एंड डॉक्टर्स आर गिविंग यू पिल्स, नथिंग एल्स। even though they don't even talk about nutrition, your exercise, and nothing else, they are just putting you on pills. So that's why वो एक टाइम था जब मुझे पीसीओडी का एक्चुअल में पता लगा कि what is PCOD is like. This is like only a ovary disease, and this is a like a based on lifestyle only. तो अमृता, आप डॉक्टर के पास गए और उन्होंने आपको क्या मतलब क्या बताया इसके लिए, बिसाइड्स द पिल कोई डाइट के बारे में पूछा? और आप कितने दिन तक डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में थे? और जो पिल्स उन्होंने दिए थे क्या इफेक्टिव थे? मैं बिफोर मैरिज का बताती हूँ आपको। लाइक मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को तब भी विजिट किया था फॉर द पीसीओडी ओनली, क्योंकि उस टाइम मुझे सिर्फ पीसीओडी की प्रॉब्लम मेजर थी। एंड दैट पिल्स नेवर वर्क्स, नेवर। और जब भी लाइक डॉक्टर्स को मैंने पूछा कि व्हाट इज द रूट कॉज और what should I change, they are nothing, just do brisk walk, just do brisk walk, hit the gym, or add complex carbs in your diet, nothing else. Don't worry, this is the age, this is the like age you can eat anything. दिस इज ग्रोइंग एज, ये सब होता है आजकल, सब लड़कियों को हो रहा है, नो प्रॉब्लम। मम्मा को जैसे, माय मदर इज वेरी वरीड अबाउट मी बिकॉज आई एम ऑल्सो सिंगल चाइल्ड इन माय फैमिली, लाइक, तो शी इज वरीड अबाउट माय ऑल हेल्थ। सो उनको था कि आप टेंशन मत लो, ये सब आजकल लड़कियों को हो रहा है, तो ये आप पीसीओडी की पिल्स, ये पिल्स हैं, इनके साथ ठीक हो जाएगा। दैट नेवर वर्क्स, दैट रियली नेवर वर्क्स। अमृता, आपने मुझे बताया था कि फिर एक टाइम आया जब आपको डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट या की। या दैट पॉइंट इज उसके लाइक, बारे में बताइए व्यूअर्स। मुझे आज भी याद है, दैट वाज अ इमोशनल टाइम फॉर मी। मैं हॉस्टल से वापस आ रही थी और मेरी मम्मा ने फिक्स किया था अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ, क्योंकि मुझे सीवियर पेन था ऑन द राइट साइड ऑफ माय लाइक टमी, एंड आई डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है। और मैंने लाइक मम्मा को बोला कि आई कैन विजिट अलोन, यू डोंट कम देयर। तो मम्मा नहीं आए, तो मैंने अकेले विजिट किया, एंड डॉक्टर लाइक शी इज डायग्नोजिंग मी, एंड उसने मुझे स्कैन किया और उसने मुझे कहा कि योर राइट ओवरीज इज फुल, लाइक इट इज इन बल्क इन साइज, देयर आर नंबर ऑफ सिस्ट्स, और आपको ना आई थिंक इसको रिमूव करवा लेना चाहिए। उन्होंने मेरी एज नहीं पूछी, मेरा लाइफस्टाइल नहीं पूछा, उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा मैं कौन सी पिल्स ले रही हूँ इसके लिए या क्या। उन्होंने डायरेक्टली मेरा स्कैन किया, डायरेक्टली मुझे ये बोला कि यू शुड रिमूव योर राइट ओवरी, एंड एंड आई एट वाज दैट शॉक्ड। टाइम आपकी एज उस वक्त क्या थी अमृता? एंड वर यू मैरिड? It was 20 only. I'm in my college days. एंड और मैं इतना शॉक्ड कि उन्होंने मेरी एज भी नहीं पूछी, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मतलब व्हाट आई एम गोइंग ऑन, व्हाट इज माय लाइफस्टाइल या कुछ भी ऐसा है। मैं शॉक्ड, और मैं उस दिन रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर आई थी कि एज अ मतलब एक यंग एज में आप सोचो कि आपकी राइट ओवरी नहीं है, तो वो आपके लिए क्या ही होगा। मतलब मैं तो इतना रोते हुए उस दिन घर आई, तो मम्मा, आई वाज जस्ट लाइक, मैंने मम्मा को हक किया, मम्मा ऐसे बोला डॉक्टर ने, तो ऐसे कैसे बोल सकते, उन्होंने तुम्हारी एज पूछी है, ये पूछा है और नहीं। तो फिर मम्मा ने मुझे लाइक अदर गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके गए, काफी सारों के साथ कल कंसल्टेट किया, कईयों ने सर्जरी बोला, कईयों ने बोला कि ये पिल्स के साथ सही हो जाएगा, बस ओवरीज में सिस्ट ज्यादा है और दैट इज इन बल्क इन साइज। ओके, सो थैंकफुली योर मदर, आपकी मम्मा ने आपके लिए डिसीजन लिया, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बोल्ड डिसीजन, बिकॉज यूजुअली पीपल डू गेट स्कैर्ड और डॉक्टर की बात पे वो चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अमृता, ये बताइए कि आई थिंक उसके बाद, एज फार एज आई नो, देन यू गॉट मैरिड एंड यू वर स्टिल स्ट्रगलिंग विद ऑल दीज इश्यूज। या स्टिल
because I don't know about any nutrition, how to change lifestyle. I'm just hitting the gym, visiting different dietitians. Her dietitians का same like pattern. 7 a.m. this, 10 a.m. this, 6 a.m. p.m. this, and 8 p.m. this, between like 2 p.m. and lunch. तो वो मैं सब फॉलो कर रही थी, सुबह पोहा, ओट्स, ये वो सब, लाइक सब कुछ फॉलो किया मैंने वैसे. आई थिंक मैंने बहुत डाइटिशियन आई विल इंटरजेक्ट हियर अमृता, डाइटिशियन ने जो आपको डाइट दिया था वो किस तरह का डाइट था? वो सीको बेस्ड था. कैलोरी इन कैलोरी आउट, दैट नेवर वर्क्स फॉर मी, दैट नेवर. आई थिंक मेरे लिए तो बिल्कुल काम नहीं किया वो कभी भी. और वो ऐसा था कि आप लाइक वो एक चार्ट था, जैसे किसी ने 1000 कैलोरीज, किसी ने 1200 कैलोरीज, किसी ने 1500 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज, ऐसे करके चार्ट बनाकर डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट फॉर्मूला, लाइक ऑन कैलोरीज बेस्ड. और ये था कि उस चीज ने मुझे कभी भी कभी भी रिजल्ट नहीं दिया है. और मैंने इतना जिम हिट किया है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने 1 मंथ में भी, वो अगर मैंने वेट रिड्यूस के लिए डाइटिशियंस को हायर किया था, तो 1 मंथ में मैंने 2 kg से ज्यादा रिड्यूस किया हो. एंड देन नेवर सेटिस्फाइड मी, ऑलवेज फील हंग्री. और वो कई बार ऐसा होता था कि चीट हो जाता था, बंजिंग हो जाती थी कहीं ना कहीं चीज पे. कितना कंट्रोल करेगा एक इंसान. अभी मॉर्निंग मैंने ये लिया, अगर इवनिंग में सिर्फ सूप ले रही हूँ और नथिंग एल्स, तो वो रात को एट द मिड ऑफ द नाइट आपको इतना हंगर फील कराता है कि आप कुछ ना कुछ खाने को ढूंढते हो कि मैं कुछ खा लूं. वो कभी भी वर्क नहीं किया मेरे लिए. अमृता, ये पीसीओडी से स्ट्रगल करते हुए एंड जब आपकी शादी हो गई एंड यू वर ट्राइंग टू कंसीव, बिकॉज as I know, as far as I know, you were trying to conceive soon after your marriage. तो उसके बारे में बताइए कि how did you come to realize that you are not able to conceive, and did you visit a doctor for that? या मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को विजिट किया है दैट टाइम. आफ्टर अ ईयर व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंसीव नेचुरली, जब हमें लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो वी शुड विजिट डॉक्टर्स. तो मुझे पता था कहीं ना कहीं कि पीसीओडी इज द मेन रीजन. तो डॉक्टर्स के पास जाते थे तो वो हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स मेडिसिन एंड टेस्ट a lot of tests there, HSG, which is very painful for me, and follicular study on the daily basis on the alternative days. और रीजन क्या था कि पीसीओडी के कारण आई थिंक FHS, जो हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन है, वो मेरा लो था. तो जो मेरे एग साइजेस है ना, वो आई थिंक आजकल मैं सबसे सुनती हूँ, बहुत सारी विमेन्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एग साइज का इशू आ रहा है. दैट इज ओनली आर मेटाबॉलिक हेल्थ इशू. वो सिर्फ डाइट के साथ सही हो सकता है. तो उसके रिगार्डिंग मैं इतनी मेडिसिन, इतने इंजेक्शंस टू बूस्ट दैट, और उससे मेरी बॉडी आई एम जस्ट फ्रॉम 70s टू कब मैं 80s और 90s में आ गई, मुझे नहीं पता लगा. तो अमृता, तो ये जब आप ये जर्नी कर रहे थे, तो डॉक्टर ने कभी आपसे आपके डाइट के बारे में पूछा, या कभी आपको ये बताया कि इसका रूट कॉज क्या हो सकता है, व्हाई यू आर नॉट एबल टू कंसीव? कभी इस पे बात हुई? या मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को पूछा कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस, अगर मेरा फॉलिकुलर FHS लो है, क्या इसका रीजन है. तो देखकर दीज आर ऑल मेडिकल इश्यूज, ये मेडिसिन से हील हो जाते हैं, आपको वरी करने की जरूरत नहीं. अगर लास्ट में कुछ नहीं होगा तो वी कैन गो फॉर IVF. तो आजकल तो बहुत दुनिया IVF करा रही है, आप मत डरो IVF से. IVF इज बेटर ऑप्शन फॉर यू. तो मैंने काफी कोशिश की, काफी डॉक्टर से पूछा क्या नहीं चेंज माई लाइफ स्टाइल. कहते हाँ, यू कैन डू ब्रिस्क वॉक ओनली एंड एड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन योर डाइट. दिस इज द आंसर ऑफ ऑल द डॉक्टर्स. एंड मुझे लगा कि डॉक्टर्स हैं, सही बोल रहे होंगे, सही होगा इनके पास, इनको तो सब कुछ पता होता है. तो ये चीजें चलती रही. आई थिंक अराउंड अबाउट 5 years मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स को विजिट किया है. ओके, आई वाज कमिंग टू दैट क्वेश्चन. 5 साल आपने कोशिश की कंसीव करने की, यू आर नॉट एबल टू कंसीव, यू वेंट टू वेरियस डॉक्टर्स. हाउ मच डू यू थिंक इन अप्रोक्सीमेट टाइम? वी नो दैट यू स्पेंड 5 years, बट इसमें कितने मतलब फाइनेंशियल प्रेशर में अगर आप थे तो क्या था उसका, वो बताइए. मैंने डॉक्टर्स को विजिट किया है, वो भी टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को विजिट किया है. और इसमें अप्रोक्स मेरा 5 to 6 लाख गया है आराम से.
और इंक्लूडिंग ऑल टेस्ट, मेडिसिन, डिफरेंट डॉक्टर्स। और 5 साल की जर्नी बहुत लंबी है। इवन नॉट फ्रॉम लुधियाना, फ्रॉम जलंधर, फ्रॉम अदर स्टेट, अदर स्टेट एंड सिटीज, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को विजिट किया है। जिसने बोला ये स्पेशलिस्ट है उसके पास चले जाओ, ये स्पेशलिस्ट है इसके पास चले जाओ। तो वो चीजें मैंने बहुत की हैं, और बहुत ह्यूज अमाउंट मैंने स्पेंड किया है। इवन दो मेरे पर्सनल रिलेशंस विद माय हस्बैंड वो भी थोड़े क्लैश हुए हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, और बहुत सारा प्रेशर मैंने फील किया है ड्यूरिंग दिस टाइम। मैं बहुत एक रेलेवेंट क्वेश्चन पे आ रही हूँ, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में एंड आई थिंक वर्ल्ड ओवर भी होता है, शायद अलग अलग तरीके से होता होगा। अमृता, ये 5 साल की जर्नी एंड टोटल 7 इयर्स की जर्नी, जब ये आप बाकी सब चीजें कर रहे थे, तो आपके ऊपर कोई ट्रॉमा, कोई प्रेशर था, सोशल, फैमिली का प्रेशर, समाज का प्रेशर, या इवन योर ओन ट्रॉमा और इमोशनल, हाउ वाज योर मेंटल हेल्थ ऑल अलोंग, while you were trying to conceive, going through all of this financially, emotionally, socially? तो मेंटल हेल्थ के बारे में बताइए, इमोशनली आपने कैसे कोप अप किया, इसके बारे में बताइए, और क्या चल रहा था उस टाइम आपकी लाइफ? See, when I was married, my mom was suffering with liver cancer. तो डॉक्टर सेड कि इनके पास टाइम बहुत कम है, although she struggled about 2.5 years with that state. और मैंने जब ये ऑलरेडी आई वाज इन ट्रॉमा ड्यूरिंग माय मैरिज। तो मैरिज के बाद जब मेरे मम्मा आई लॉस्ट माय मदर, तो वो टाइम पीरियड ऐसा था कि मैं उस चीज से बाहर नहीं आ पा रही थी। और सबको ये था कि यू शुड कंसीव सो दैट यू कैन डाइवर्ट योर योर, आप डाइवर्ट कर सकते हो अपनी लाइफ को, आप खुद डाइवर्ट हो जाओगे, थोड़ा डिप्रेसिव माहौल से बाहर आ जाओगे। तो वो एक टाइम था कि उस चीज के बारे में मैं सोच नहीं सकती थी, क्योंकि आई लॉस्ट रियली माई पिलर ऑफ द लाइफ। तो आफ्टर ममा, मेरे ममा 2017 में हुए हैं ऐसे, तो 2018 ऑनवर्ड्स मैंने डॉक्टर्स के पास जाना शुरू किया। एंटिल 21 22, इन स्टार्टिंग ऑफ 22 मैंने सब डॉक्टर्स को विजिट किया है। और जैसे फैमिली प्रेशर भी था कि अब आपको कंसीव कर लेना चाहिए, व्हाई यू आर नॉट कंसीविंग, यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, ये जरूरी है। इवन दो इन योर इन लॉज, हर मंथली, हर सेकेंड मंथ, हर थर्ड मंथ आपको पूछना, डिड यू कंसीव, डिड यू कंसीव। इवन अराउंड योर नेबर्स, I know who are they are backbiting. Why she is not conceiving? Is there any problem? Or might be she is struggling with the thyroid or any health issue. मतलब किसी ने अगर मिल भी जाना ना, कहीं पे भी, कहीं पार्टी में, कहीं कैजुअल, कहीं बीच में, या एनी फैमिली फंक्शन में, तो सिर्फ सबके पास यही क्वेरी होती थी, व्हाई यू आर नॉट कंसीविंग। अब कोई मजाक में, अब आपको कर लेना चाहिए। तो ये कैजुअल क्वेश्चन हो गया था मेरे लिए। तो मैं तो ऐसा होता था कि मैं उस चीज से भागती थी, यार प्लीज स्टॉप द टॉपिक, कुछ और बात कर लो। मतलब इतने दिनों बाद आप फैमिली को मिल रहे हो, इतने दिनों बाद आप किसी फंक्शन में अटेंड हो रहे हो, तो सबके पास यही क्वेश्चन होता था। इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा तब ऐसा होता था, मैं घर पे आती थी तो मैं रोने लग पड़ती थी कि सब ऐसे ही क्यों बोलते हैं, मैं कौन सा ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं कौन सा डॉक्टर के पास जा नहीं रही हूँ, या मैं मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, सी माई हेल्थ, मैंने कितना कुछ अपना गेन कर लिया है वेट, मेरे हार्मोन्स सब इधर उधर हो गए हैं, सब कुछ ऐसा। मतलब मैंने ऐसा टाइम पीरियड देखा है कि जब सब ऐसे बोलते थे कि माइट बी शी हैज सम बिगर प्रॉब्लम, कि अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। So that was a very difficult emotional period for you as well, because चारों तरफ आपके यही क्वेश्चन था कि जैसे कहते हैं हमारे सोसाइटी में, गुड न्यूज कब दे रहे हो, एंड दैट या गुड न्यूज वाज नॉट कमिंग. So I can totally understand Amrita, but I'll come to the positive side of Amrita's story now. And this is part two. And as we say, back after the interval, then Amrita found D-Life. And she had already began her low carb journey before coming to D-Life somewhat. And then she came to D-Life. Amrita, please tell us, how did you find out about D-Life? उसके पहले तक आपकी क्या स्थिति थी हेल्थ वाइज, और जब आप यहाँ पे आए आपको सबसे पहले डी लाइफ मिला कैसे? हाँ श्योर। ये तो इस डी लाइफ से मेरे मुंह पे स्माइल आ गई खुद भी खुद।
ऐसा है कि मैंने ना जब डॉक्टर्स को विजिट करना शुरू किया, लाइक आफ्टर 5 ईयर, मुझे लगा कि मुझे नहीं, जब डॉक्टर्स ने सबने बोल ही दिया कि आईवीएफ इज ओनली द सोल्यूशन, तो मुझे ये था कि मुझे रूट कॉज को जानना है, मुझे ये सब ठीक करना है, और इसके लिए मैंने खुद बहुत रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, और उसके बाद मैंने चीजें अप्लाई की हैं खुद पे। मैंने लो कार्ब को अप्लाई किया, कीटो को अप्लाई किया, देन मैंने अपनी सारी हेल्थ इश्यूज सब रिवर्स किए हैं इससे। और मुझे इस चीज को ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया, लाइक अप्रोक्स इन 23 तक मैंने जब अपने टेस्ट करवाए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फाइन। मेरी जो सिस्ट जिसने डॉक्टर ने बोला था रिमूव कर दो, वो बिल्कुल सिस्ट फ्री हो चुकी थी, कोई भी सिस्ट नहीं थी, पीसीओडी बिल्कुल रिवर्स हो चुका था, आई वाज ऑन माय नॉर्मल साइकिल। और मुझे था कि मुझे इसमें और एक्सप्लोर करना है, मुझे इसका सर्टिफिकेशन करना है, मुझे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए जो लाइक इस चीज को प्रमोट करता हो, क्योंकि अगर मुझे इस चीज का फर्क पड़ा है तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे इसको प्रैक्टिस करना है, मुझे सबकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लानी है, और जो भी इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा है वो आईवीएफ सेंटर्स में नंबर ऑफ लाइक आपकी अपॉइंटमेंट्स फिक्स होती हैं, मतलब इतनी ज्यादा रश है आजकल आईवीएफ सेंटर्स में कि लोग अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करना चाहते, बट आईवीएफ सोल्यूशन उनके लिए बेस्ट है। तो मुझे ये था कि ये चीजें मुझे ठीक करनी है, स्पेशली इन वुमेन हेल्थ। और देन वन नाइट इन जून, आई थिंक इट्स अराउंड अबाउट 8th जून, मैंने ऐसे ही सर्च कर रही थी गूगल पे कि अबाउट प्लेटफॉर्म, इज देयर एनी प्लेटफॉर्म इन इंडिया, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इंडिया में लो कार्ब नहीं है। तो मेरे मतलब यही थॉट था कि इंडिया में लो कार्ब का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने जब सर्च किया तो मैंने डी लाइफ को सर्च किया। देन मुझे थोड़ा क्वेरीज थी, थोड़ा लाइक ऐसा था, कंफ्यूजन था, इज इट लाइक राइट और रॉन्ग, व्हाट इज दिस लाइक। तो मैंने उसको सारा रिसर्च किया उस दिन रात को, अराउंड अबाउट 1 AM। और वहां पे ना एक व्हाट्सएप लिंक था, तो मैंने कहा कि मुझे एक बार ना ट्राई तो करना चाहिए, कि मैं बहुत देर से रिसर्च कर रही हूँ इस चीजों को, मुझे 1 to 2 वीक्स हो गए थे। तो मैंने व्हाट्सएप लिंक पे जब क्लिक किया तो अनूप जी वॉज देयर, तो मेरी सारी क्वेरीज उन्होंने सॉल्व की, एंड इमिडिएटली मैंने उसी दिन लाइक रात को ही 2 AM ज्वाइन किया डी लाइफ को, एंड दैट वाज बेस्ट डिसीजन। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अमृता। फिर आपकी जर्नी डी लाइफ में कैसी रही? और मुझे जहां तक पता है एक टाइम के बाद आप कार्निवोर हो गए थे, आई मीन कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डाइटरी बैकग्राउंड। आप उसके पहले शायद वेजिटेरियन थे, एंड उसके बाद आप फुल्ली कार्निवोर हो गए। आप ये जर्नी बताइए लोगों को, व्हाट इंस्पायर्ड यू एंड व्हाई डिड यू चेंज योर डाइटरी प्रेफरेंसेस एट ऑल, एंड दैट हैपेंड आफ्टर यू केम टू डी लाइफ। या बेसिकली ऑलमोस्ट मैं वेजिटेरियन थी, मतलब कभी कभी मैं एग्स ले लेती थी, या बहुत रेयर चिकन ग्रेवी ले ली, या कुछ ऐसा था। तो ऑलमोस्ट मैंने ज्यादा इन चीजों को खाया ही नहीं था। मुझे था कि पनीर इज ओके फॉर मी फॉर द प्रोटीन। और फिर मुझे याद था कि नहीं, जब मैंने डी लाइफ को ज्वाइन किया, मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया, डी लाइफ का ग्रुप है हमारा, वहाँ पे हमारा मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो आई मेट विद यू देयर, और मैंने देखा आप कार्निवोर, लाइक यू आर अ कार्निवोर क्वीन। और फिर मैंने लाइक इस चीज पे लाइक मुझे था कि शायद मुझे ना कार्निवोर टर्न शुड टर्न इन कार्निवोर। तो उस टाइम पे ना मैं सोराइसिस से थोड़ा सा फील लाइक स्ट्रगल कर रही थी, और वो लाइक अराउंड अबाउट 1 मंथ से हुआ था। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर से ना स्किन मेडिसिन ली थी, तो स्किन मेडिसिन जो है वो मेरे लिए एक टाइम पे ठीक कर देती थी, और दूसरे टाइम पे फिर से हो जाता था वही सेम रीजन पे। तो वो मेरी फिंगर्स पे था। तो मैंने एक दो केस स्टडीज देखे उसके ऊपर, और फिर मैंने ना जून 15 को कार्निवोर टर्न, अपने आप को कार्निवोर टर्न कर लिया। तो मैंने 15 जून, मुझे पता था कि मैंने 31 जुलाई को अपने हस्बैंड के पास जाना था, एज ही इज इन दुबई। तो मुझे था कि लाइक ये चीजें जब मैंने इसको स्टडी किया, या मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि FHS लेवल को अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो इट माइट बी हेल्प मी। तो कार्निवोर ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज में, दैट्स व्हाई आई
conceived on 1st or 2nd August in 2023 और 23 जून में मैंने डी लाइफ को ज्वाइन किया था and within like span of 1.5 month or approximate 2 months I conceived successfully. That's wonderful to know. And as we progress, you viewers will also know that how you changed your life around. But Amrita, tell me, आप पहले से लो कार्ब करते आ रहे थे, बट जब आप डी लाइफ में आए तो क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ, सब जो लो कार्ब का आइडिया लोगों का होता है कि हम ये लो कार्ब कर रहे हैं? पहले से भी बहुत लोग जो आते हैं बोल के आते हैं कि हम लो कार्ब कर रहे थे, ओट्स और मिलेट्स और ये सब। बट आप जब आए, या फ्रूट्स, कंज्यूमिंग फ्रूट्स रेगुलरली, आप जब आए, आप लो कार्ब ऑलरेडी कर रहे थे, यहाँ आके क्या आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज हुए कि आप कुछ कुछ चीजें हो सकता है सही नहीं कर रहे हो, एंड दिस इज नॉट द रियल लो कार्ब, और यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि एक्चुअली करते कैसे? या ये 100 ग्राम ऑफ कार्ब्स का जो मुझे पता लगा वो डी लाइफ से ही पता लगा। बेसिकली मैंने फुल फ्लेज लो कार्ब भी किया था क्योंकि मैंने कोई कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं ऐड किए थे। आई वाज ओनली ऑन फैट एंड प्रोटीन, और बट 100 ग्राम का जो ये जो कंसेप्ट है वो मुझे डी लाइफ से क्लियर हुआ, और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, लाइक राइट सप्लीमेंट्स, राइट न्यूट्रिशन, राइट लाइक प्रोटीन इनटेक, फैट इनटेक, वो चीजें सारा डी लाइफ से ही क्लियर हुआ है। तो अमृता, ये बताइए कि अब जब आपने कंसीव किया, फाइनली यू सेड यू वर विद योर हस्बैंड एट दैट टाइम इन दुबई, आई गेस, तो आप, कैसा लगा आपको? क्योंकि आपने इस चीज से 7 साल स्ट्रगल किया. You were throughout, struggling with your health issues, obesity, PCOD, psoriasis, and everything that you mentioned just now. And after being told by doctors, बताने के बाद कि आपको IVF कराना जरूरी है to conceive, and you defied that protocol, and आपने खुद कोशिश करने की वो शिद्दत आपने ली. तो आपने जब कंसीव किया, आपको फाइनली कैसा लगा? क्या आपको उम्मीद थी कि आप इतना जल्दी जल्दी कंसीव कर लेंगे? हाँ, मुझे था कि ये अब होकर रहेगा और मुझे करना है, मतलब मुझे 2023 में कंसीव करना है। दैट्स व्हाई आई प्लान टू विजिट दुबई। और मुझे था कि ये अब सक्सेसफुल होगा क्योंकि उसके जाने से पहले मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए थे और सब कुछ ठीक था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो पहले मेरे टेस्ट में आता था, और मुझे था कि अब सब कुछ ठीक है, अब सक्सेसफुल हो जाऊंगी। और सक्सेसफुल हो जाऊंगी, और ये चीजें मैंने ध्यान में रखकर सोचा था कि ये चीजें जो हैं वो पक्का सक्सेसफुल होंगी, और लाइक मेरी लाइफ है जो, दिस इज द राइट टाइम, यहाँ चेंज होगा, कुछ चेंज होगा। तो बस ये नहीं था कि इतनी जल्दी कंसीव हो जाएगा, मुझे लगा था इट माइट टेक लाइक 2 to 3 months, और 6 months का मैं टारगेट लेके गई थी। और विद इन लाइक मैंने लाइक 31 जुलाई को गई हूँ, 1 और 2 अगस्त को मैंने कंसीव किया है, एंड 10 अगस्त में मेरे पास रिजल्ट था कि दैट इट इज पॉजिटिव। सो अमृता, ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत खूबसूरत जर्नी रही आपकी, ऑफ डिटर्मिनेशन, लर्निंग, एंड गेटिंग सर्टिफाइड ऑल्सो डाउन द वे. बट आप आज के दिन में जो आपकी जर्नी रही, उससे जो आपने सीखा, तो आप ये मैसेज क्या देना चाहोगे उन लोगों को, स्पेशली टू दोज विमेन, गर्ल्स who are struggling with PCOS और PCOD, या जो लोग IVF के लिए जाना चाहते हैं, या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या ओबेसिटी और ये सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं? सो व्हाट इज द मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव आउट टू दोस? बेसिकली जो मैंने देखा है, जो मैंने अभी एनालाइज किया है, या मैंने अपने टाइम पे भी एनालाइज किया है, ये चीजें यंग गर्ल्स में बहुत सारी है। पीसीओडी, थायराइड इशू, मेटाबॉलिक इश्यूज, इवन वेट गेन। आप अभी भी देखेंगे हम तो बहुत सारी लड़कियां ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रही हैं, और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ इशू। तो मेरे ख्याल से जो भी आप जंक खाते हो, जो भी आप अपना लाइफ स्टाइल, लाइक आई वॉज ऑल्सो पाउच पोटैटो दैट टाइम, और ये चीजें ना हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। सो पीसीओडी जो है आजकल, मुझे लगता है कि ये 1/3 वुमेन को है, और दिस इज बेसिकली
major health issues we are facing right now. और ये जो हर वुमेन स्ट्रगल करती है, लाइक इन कंसीविंग ऑल्सो, इनफर्टिलिटी, और infertility is the major issue right now in our country also, or in other country also. It is only a lifestyle issue. और ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपको मेंटली इमोशनली ब्रेक डाउन करती हैं। और मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है विदाउट पिल्स, विदाउट डॉक्टर्स, विजिटिंग डॉक्टर्स ठीक हो सकती हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। यू जस्ट फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल, योर डाइट, योर प्रोटीन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड। अमृता, अब आप एक सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कोच भी हो गए। आपने जो जर्नी अपने लर्निंग के लिए शुरू की थी, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए शुरू की थी, नाउ यू आर सर्टिफाइड थ्रू डी लाइफ, and now you are changing so many lives around you, you're inspiring so many people and women around you. तो आपको क्या लगता है कि हर कोई ये न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना चाहिए? और अब आप सर्टिफाई हो गए तो आप कैसे क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ? बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो कोर्स है ये सबको करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर सर्टिफिकेशन, फॉर योर ओन हेल्थ ऑल्सो। आप अपने फैमिली मेंबर्स को ठीक कर सकते हो, आप अपने खुद को, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हो। और रेदर देन मुझे था कि मैं अगर इतना स्ट्रगल करके इस टाइम पीरियड में मैंने इतना स्टडी किया, इतना सब कुछ किया, फिर मैंने अपने आप को ठीक किया, और वाई शुड मैं क्यों ना हेल्प करूं किसी की इस चीज में। सो ये जो है मैंने बहुत सारे इस टाइम लाइक क्लाइंट्स को हैंडल कर रही हूँ। बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं दिस पीसीओडी, एंड दे आर इन कॉलेज एंड स्कूल लाइफ। और ये चीजें जो हैं ये बहुत लोगों की ठीक हो रही। लाइफस्टाइल चेंज करने से आपका एक यू टर्न हो जाता है, आपकी लाइफ का बिल्कुल यू टर्न हो जाता है। यू आर ऑन पिल्स, यू आर ऑन लाइक पीसीओडी की क्या पिल्स है, आई नो। मुझे जो मिलता था वो 21 डेज का एक साइकिल पिल मिलता था जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी। वही सेम रूटीन आज भी है, वही लाइक वो पिल्स जो है वो मुझे ना कहीं कहीं तो हेल्थ इफेक्ट किया ही है। तो आई डोंट वांट कि सबको वो चीजें हो। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। आई थिंक पिल्स पे जाने के पहले यू शुड, एंड दैट is the most important part of your the conditions that people like Amrita or even myself, maybe we were, that was one of the major aspects. And once we changed that, in fact, for me as well, the carnivore diet worked wonders, and I could save myself from getting into a kidney transplant situation. So, with this, we come to the end of Amrita's journey. But then there's one showstopper to this podcast, and I would want Amrita to bring on screen Adrita, who is now 1 year old. Amrita, 3 months, approx 3. 3 months. Okay, yeah. So she's now 3 months old, and Adrita is the fruit of Amrita's labor for that she underwent for 7 long years, going through PCOD, going through obesity, going through all of her health issues, and till finally she came to D Life, where her life changed, and Adrita was born to Amrita on what date was that, Amrita? 9th April, 9th 2020. April. Can we have Adrita on the screen, please? Yeah, sure. Let me call my dad. Dad. I think this is the highlight of this podcast, and I really wanted to, bring Adrita on screen to show people and to inspire women out there who are struggling, with PCOD, with all of these, and they're not able to. Here is the showstopper. Hi, Adrita. Welcome to the Live Sunday podcast. Say a hello to our viewers. Say hi. Hi. Yeah. So I think this is just to inspire every broken heart. This is just to inspire women who are going through a lot of trauma, pressure, emotional
isolation because they're not able to conceive, because they're struggling with a lot of health issues, and there are various protocols being given to them by doctors. I think Amrita's story brings out the point that diet is probably the first thing that you should look at changing before you try anything else, and that might just work. Amrita, is there something else or any last words that you would want to tell our viewers? आई थिंक जैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज की है, एवरीवन कैन चेंज. और आई थिंक डी लाइफ इज द सोल्यूशन वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ. बहुत सारे IITians हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ मेटाबॉलिक हेल्थ कोच. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अभी डी लाइफ को अप्रोच कर रहे हैं, डी लाइफ को कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं. बिकॉज समटाइम्स जहाँ मेडिसिन नहीं काम करती, वहाँ डाइट काम करती है. And even like person like me who struggled a lot, and मैंने जो अपना डाइट को अडेप्ट किया है और अपनी चीजों को चेंज किया है, अपनी हेल्थ को 360 डिग्री चेंज किया है, और देन मैंने ज्वाइन किया है डी लाइफ को. अब मैं एज अ मेटाबॉलिक हेल्थ कोच प्रैक्टिस कर रही हूँ. और ये चीजें हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं. और I just thank to Anu that who launched India's first biggest and wait a minute. So that is motherhood for Amrita, which I am thoroughly enjoying. And it's a pleasure and a delight to talk to Amrita and also say a hello to Adrita. Such a pride to, see you, Amrita. Yes, you were saying something. Yeah. That he is like the D-Life is like India's first biggest and award-winning low-carb platform. And Anup, like he is silver medalist from IIT Roorkee, and hence a brilliance of the platform and course, both the evident and the fact that course two and the world's biggest ultimate, which is CPD accreditation of 60 hours, and that no other course has. Seriously, that no other course has. I think Amrita has summed it up beautifully about her life's journey, about how she won, and also about D-Life and how that changed her life. And I think all of us, certified practicing metabolic health coaches of Amrita also is one of us. And we are going out there and changing lives and trying to do our best, in India's metabolic health crisis. Amrita is one shining and brilliant example who has changed her life around. And what a joy it is to talk to you, Amrita. Also to talk to and say hi, not talk to, but say hi to Adrita. I wish you all the best, and I wish you loads and loads of happiness and success as a practicing metabolic health coach from D-Life. So this brings us to the end of the session and a very special afternoon with Amrita Soni. And what you've done for yourself, Amrita, is inspirational. I am sure your journey will inspire many, many women out there to inquire, to seek, to learn, and eventually, carve their own paths to glory. So thank you so much for joining in today. And it's a beautiful Sunday afternoon. And I will take your leave now. And we'll meet again next Sunday. So this is Ira Sahai signing off. I'll be back again with another Sunday, great Sunday D-Life podcast. See you till then. Bye-bye.